हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ एक बार फिर से सुजाता मैम है। और सुजाता मैम, बहुत सारे कैंडिडेट्स का सवाल आ रहा था कि जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी है वो कैसे करें और डेमो क्लास को वो किस तरह से इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए मैम। Okay, good morning everyone, and wishing all the best wishes for your preparations and all. See, if you're going for TGT English and PGT English, so you have to be confident in all the syllabus that you have to teach. जो भी आपको पढ़ाना है TGT classes में from up to 10th class, 6 to 10, and in PG classes in the for the PGT course in senior classes in 11th and 12th, वहाँ आपको एक तो syllabus totally thoroughly आपको मालूम होना चाहिए कि what is the syllabus, what are the books, what you have to teach in the classes. And as nowadays we are taking up the new education policy, so what are the things that are taken up in the teaching and learning process of our learning, our teaching in the schools. ये बहुत ज़रूरी है, syllabus and the format of the paper and the books and NCF, what we have taken, what has been implemented from the NCF in our teaching and learning process. Like, we are not the teachers nowadays, no? We are the felicitators. We only guide the students. You do that thing, you do that thing. Because from the last few years, we have seen that this learning by doing is taken up. And in the new education policy, we see that the children can go for any subject. So we cannot force anyone to do this only, that we are teaching. So nowadays we don't have to teach. और तो जो आपका डेमो लेसन होता है उसमें भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए कि वी आर नॉट द टीचर्स, वी आर द फेलिसिटेटर्स. So how we take a topic and how we help the children to learn by themselves. We only guide them. तो आपका डेमो लेसन ऐसा होना चाहिए, है ना. And if you are going for TGT English and PGT English, so you have to totally speak in English. And your fluency should be there. Whether you speak you do some grammatical mistakes or that, but the fluency should be there and the confidence should be there that you are speaking good, you are speaking nicely. Because for PGT English and TGT English, spoken English along with the syllabus and everything, all the things are taken up. So that is very very important. लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू, व्हाट आई हैव टेकन अप फ्रॉम माय इंटरव्यू इज कि दो यू मिस सम ऑफ द अदर थिंग. अभी और भी हम वीडियोस अभी देख रहे थे टीचर्स के कि एक दो मिस्टेक्स तो होते ही हैं. मतलब कि सारे आंसर्स आपको मालूम हो, यू नो ऑल द आंसर्स, ये आप ये कह नहीं सकते. नोबडी कैन से दैट कि हमारे सारे आंसर्स करेक्ट हुए. तो बट व्हाट आई फील अकॉर्डिंग टू माय इंटरव्यू दैट even if you miss any of the or other teachers also if they have been selected, but you have to see that you are very confident. Whatever you do means most of your answers should be correct. If one or two things are wrong, doesn't matter. But that in saying that you are not knowing it, that there also you must show your confidence that I am free to say that I am not knowing that answer. हमें ये आंसर नहीं आता, उसमें भी आप कितने कॉन्फिडेंस से उसको बोल पाओ. एंड वॉट आर द अदर थिंग्स लाइक योर डेमो लेसन, योर प्रेजेंटेशन, एंड दैट इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव सेड दैट फर्स्ट थिंग दैट द इंटरव्यूअर्स नोटिस इज योर हाउ यू come to the how is your impression. It is said that the first impression is the best impression. So No, how last you one. come to the interview room, that is the first impression. And from there only they get that the interviewers get that how confident you are, है ना. If are not कल मुझे पूछना था कि आपने जैसे बताया कि सिलेबस पता होना चाहिए, तो वो एनसीईआरटी का पता होना चाहिए या फिर स्टेट बोर्ड्स के भी सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए? जैसे एमए मतलब जैसे
पीजीटीज के लिए जाते हैं तो आपको पीजी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे आपको सारा कुछ आ जाता है। जैसे आपने अगर पीजी किया है तो आपने जैसे हिंदी से भी अगर किया है तो हिंदी के जो आप पोएट्स को पढ़े हो या इंग्लिश के आप जो पोएट्स को पढ़े हो तो वो सब पूछे जाते हैं। तो वो तो फिर यूपी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों मिक्स हो जाता है। लेकिन टीजीटीज में इफ़ यू हैव कंप्लीटेड, आपको पूछा जाता है कि आपने एमए किया है क्या, है ना, मतलब वो तो दिख ही जाता है आपके पास सर्टिफिकेट अगर होता है। तो अगर आपने एमए किया है तो देन इवन आपने बीए अगर किया है तो उसमें भी आपको पूछा जा सकता है कि आपने कौन से नॉवेल्स पढ़े हैं, कौन से पोएम्स पढ़े हैं। तो एज सच ये नहीं होता है कि यू स्टिक टू ओनली एनसीईआरटी। ओके, 11-12 तक से ही सीमित नहीं है। हाँ, 11-12 तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि टीजीटीज में भी बीए तो होता ही है, बीएड भी होता है, तो उसमें भी पूछा जा सकता है ना। तो खाली यू स्टिक टू एनसीईआरटी ये नहीं होता है ना। आपको पीजी लेवल का या बीए लेवल का भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो मतलब वो तो क्या कहेंगे, यूपी बोर्ड तो नहीं कहेंगे उसको, तो पूरा ही जो हमारा यूनिवर्सिटी लेवल की जो पढ़ाई है उसके बारे में ही आ जाता है। मैम, अगर कोई इंटरव्यू दे रहा है और इंग्लिश में है टीजीटी और पीजीटी के लिए, इन केस अगर वो कुछ भूल जाए, ठीक है, और उसके मुंह से जो है वो उसकी मदर टंग या फिर हिंदी वर्ड्स वो बोलना शुरू कर दे, तो फिर उस टाइम पे क्या करें? तो उसको सिंपली आप कहिए कि सॉरी सर, आई मिस द वर्ड, तो दैट इज ग्रांटेड। मतलब वहाँ पर भी यू सी एक कॉन्फिडेंस आपका वहाँ पे रहना ही चाहिए। कुछ भी हो जाए मुझे अपने को सही बताना है, ये वाला एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हम गलत हो गए तो एकदम सॉरी हो गए, एकदम परेशान हो गए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलती हो जाती है बोलते हुए भी, इफ़ यू फील कि यू आर मिसिंग सम वर्ड, है ना, कोई वर्ड आपको नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ी देर बोल दो कि एक्सक्यूज़ मी सर, आई विल बी गेटिंग अप सून। इस तरह से कह सकते हो, है ना। मतलब वो एकदम से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका कॉन्फिडेंस बिलो जा रहा है। तो पूरे इंटरव्यू आपका जो है मैक्सिमम आई फील कि 15 to 20 मिनट्स का होगा, है ना। हम लोगों के समय तो क्योंकि रिटन एग्ज़ाम नहीं होता था तो एक आधे घंटे का इंटरव्यू हो जाता था हम लोगों का, है ना, क्योंकि पूरा सब कुछ उसी में जज करना होता था। लेकिन आप लोगों का जैसे रिटन भी एग्ज़ाम के बाद होता है, तो अभी आपका तो है 15 या 20 मिनट्स का ही इंटरव्यू होगा। तो मैम, एक सवाल और है कि डेमो क्लास में अगर वो आपको चॉइस देते हैं कि ठीक है आप अपने मन से जो है आप पढ़ाइए कुछ भी, तो उसमें क्या चूज करना बेटर रहता है? चॉइस ही देते हैं, ज़्यादातर वो चॉइस ही देते हैं। ओके, आप किस पे बोलना पसंद करेंगे, आप किस टॉपिक पे डेमो लेसन देना पसंद करेंगे, और वहीं से वो कुछ पिकअप करते हैं, है ना। तो आप जो बहुत अच्छे से आपको आता है वही टॉपिक बताएं, वही पोएट के बारे में बताएं, वही ऑथर के बारे में बताएं, जिसमें आप एकदम कंप्लीटली तैयार हो, उसमें गलती होने की संभावना कम से कम हो, है ना। तो वो आप अगर तैयार करोगे तो वहाँ से कुछ भी पूछा जाएगा तो आप बता सकते हो। मैम, बोर्ड को जो आपने बताया हैंडलिंग करना, उसमें क्या मेनली रहता है? मेनली तो देखो, टीचिंग क्लास में आप जाते हो तो आप सारा कुछ लिखते हो बोर्ड पे, है ना। लेकिन वहाँ भी कई बार होता है कि आप उतना कुछ ना लिखो, यू डायरेक्टली कम टू टॉपिक। ओके, तो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर देना है कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ा रहे हो, एंड देन आप क्या क्या पढ़ा रहे हो। जैसे मान लो कोई टॉपिक आपने लिया, उसका फॉर्मेट बताना है आपको इंग्लिश में, जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे आजकल राइटिंग सेक्शन है तो उसमें आपको फॉर्मेट बताना है। तो वो फॉर्मेट आप अच्छे से ड्रॉ कर दो, सारी चीज़ें बता दो, मेन चीज़ें जो होती हैं, मतलब आपकी बोर्ड की जो राइटिंग होती है वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। एक तो पहली बात ये है, क्योंकि कई लोगों की उसमें हैबिट नहीं होती है, जैसे ई बोर्ड्स में, है ना, तो वो एकदम टेढ़ा मेढ़ा। इवन ये वाले बोर्ड पे भी, ग्रीन बोर्ड पे भी मैं देखती हूँ कई बच्चे जो है बहुत अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, तो वो भी एक प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है, ई बोर्ड की भी। और ये वैसे जनरली आजकल तो ई बोर्ड पे आप करने लगे और आपके उसको हैंडलिंग नहीं आ रही है कि कहीं ऑफ हो गया, कहीं मूव करना है, कहीं हटाना है, वो सब आपको नहीं आ रहा, तो अगेन योर कॉन्फिडेंस गोज डाउन। हाँ, ये तो है। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज जो है वो लेके जाए, वो लेके जाना चाहिए। मतलब ये आप कोशिश करें कि वहाँ ऐसी कोई चीज़ ना हो
जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन जाए, है ना। और मान लो कभी कुछ हो जाता है ऐसा, तो एकदम कॉन्फिडेंटली करना होगा कि सर आई काइंडली हेल्प मी, आई एम अनएबल टू डू इट। ये भी कर दोगे तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है ना। अगर आप हेल्प मतलब कॉन्फिडेंटली आप बोल रहे हो, आप नर्वस हुए बिना वहाँ पे कर रहे हो। लेकिन मोस्टली बच्चे नर्वस तो होते ही हैं थोड़ा बहुत, है ना, और एकदम से कुछ हो जाता है तो एकदम नर्वसनेस आ जाता है। इसी को कम करना है ना। और इसके लिए मैं तो यही बोलूँगी, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़ा कंसंट्रेशन लेवल अपना बढ़ाएं कि हम कैसे प्रेजेंट करेंगे, हम अगर गलत भी हो जाते हैं तो कैसे उसको फेस करेंगे, है ना। जैसे ऐसे भी हम आजकल जो है देखते हैं, कैसी डेली लाइफ में भी कोई चीज़ गलत हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए तो हमें लगता है कि अरे ये गलत हो गया, लेकिन देन वी रेक्टिफाई, है ना। वही चीज़ हमें वहाँ पे तुरंत करना होता है। तो ये 2-4 चीज़ें ध्यान रखें। और ये जो इंट्रोस्पेक्शन एक बोला जाता है ना, कि एक बार आप चुपचाप बैठो शांत होकर और देखो कि आपकी तैयारी कैसी है, तो वो भी बहुत हेल्प करता है। मतलब आप अपने माइंड में पहले से ही एक जो है डेमो क्लास की प्रिपरेशन करके जाइए, कि इस तरीके से होगा। जैसे आप लोग प्रिपेयर तो कर ही रहे हैं, अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो ये 2-3 चीज़ें मतलब मस्ट है। जैसे कि अगर इंग्लिश स्पीकिंग आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो तो इट विल बी हेल्पफुल, है ना। वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। अगर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी है तो वो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है। तो ये करिए, एक थोड़ा प्राणायाम, इंट्रोस्पेक्शन, इस तरह की चीज़ें करिए, है ना। और वो डेली हैबिट में करिए, ये नहीं कि इंटरव्यू वाले दिन करके चले जाओ। नहीं, आप मतलब घर पे भी प्रैक्टिस करके जाए कि इंट्रोडक्शन कैसे बोलना है, डेमो क्लास कैसे प्रेजेंट करनी है, ये सब प्रैक्टिस करके जाए। आजकल तो बहुत सारे वीडियोस और ये सब आ ही रहे हैं, वो देखो, लेकिन खुद प्रैक्टिस भी करो, है ना। कि जब आप मतलब ये बोला ही जाता है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका डेमो, लेसन और इंटरव्यू अच्छा होगा। और एक प्रेजेंटेशन, यही 4-5 चीज़ें आप ध्यान रखो तो आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा हो जाएगा।